Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your medico paji, your anatomy as well as microbiology mentor. So today is a very short video that is my on Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae. So ये नाम में छुपा है कि छुपा गया नाम में ही है कि सर organism which causes pneumonia. So basically it causes bacterial lobar pneumonia. It is not causing atypical pneumonia. It is causing typical pneumonia only. Lobar pneumonia. The causes of lobar and this typical and atypical pneumonia I have discussed in my first video, which is extra important, and you can't miss that video because उसके अलावा कुछ नहीं समझ आना उसके बगैर कुछ समझ नहीं आना इस यूनिट में. ओके, सो Klebsiella pneumoniae, clinical features, lab diagnosis and treatment you will discussed. Thought: people are mistaken if they think spirituality begins with the rituals. It begins with the way you treat others when no one is watching. The meaning of religion, we have created different meaning of religion. This is the whole problem. Religion starts with only humanity only. कि how you treat the other people, how you treat other animals, how you treat environment. This is the real spirituality. This is the real religion from where it starts. Then comes the other rituals. So this is the first uttermost important ritual, utmost important thing you should incorporate in your life. कि how you should be kind to all the living organisms on this in this planet Earth. ग्रीड जब आ जाती है ना तो पंगा पड़ता है. ग्रीड से हमने बचना है एंड ईगो से भी. सो ये ग्राम नेगेटिव बैसिला pneumonia. So the which gram negative bacilli which causes pneumonia, it is divided into two broad categories की एक होती है Enterobacteriaceae family. Enterobacteriaceae family में से कौन कौन से ऐसे organisms है which causes gram negative bacilli pneumonia. और मैं बार बार बोल रहा हूँ this is my lobar pneumonia, that is my typical pneumonia कि जिसमें alveoli is involved and productive cough is there. So Enterobacteriaceae family, Klebsiella, E. coli, Enterobacter, that is Enterobacter aerogenes and this Enterobacter cloacae. ठीक है, आप Enterobacter नाम याद रख सकते हो. एंड Serratia का भी एमसीक्यू आता है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बैक्टीरियल लोबार निमोनिया, तो उसमें Serratia दिया होता है. ओके, एंड नॉन फर्मेंटर्स. अब नॉन फर्मेंटर का मतलब क्या होता है? जनरल माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि एंटेरोबैक्टीरियसी का मैंने क्या निमोनिक करवाया, दैट इज माय CP1GF. ओके, ग्लूकोज फर्मेंटर होते हैं. एंटेरोबैक्टीरी फैमिलीज ग्लूकोज फर्मेंटर, कैटालाइज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडाइज नेगेटिव, ऐसे मैंने आपको करवाया इन जनरल, है ना. तो नॉन फर्मेंटर्स कैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटिंग करते हैं, ना फ्रक्टोज, ना ग्लूकोज, ना लैक्टोज, नथिंग. दे डोंट फर्मेंट एनी ग्लूकोज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन फर्मेंटर्स. तो इसमें कौन कौन से आते हैं? दैट इज सूडोमोनास, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वीडियो होगा हमारी सूडोमोनास के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. एसिटिनोबैक्टर एंड बर्कहोल्डेरिया. Pseudomonas, Acinetobacter and Burkholderia, these are the non-fermenters which causes pneumonia. And these all three are major cause of VAP. VAP क्या होता है? That is ventilator associated pneumonia. Ventilator associated pneumonia, which is the major problem of our healthcare system. Klebsiella pneumoniae, अब मैंने बार बार बोल रहा हूँ, it is a causes lobar pneumonia. Lobar pneumonia का मतलब क्या होता है? It will involve the alveoli as well as it will produce productive cough, मतलब the cough with mucus. So कैसा म्यूकोस होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकोइड ब्रिक रेड स्पूटम, वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन आपने याद रखनी, लाल रंग का स्पूटम, नॉट ब्लड टिंग्ड. ब्लड टिंग्ड अलग होता है, रेड कलर. वैसे ये भी रेड ब्लड से ही होता है, बट आपने ब्रिक रेड जहां पर भी लिखा आ गया ब्रिक रेड स्पूटम, you can mark the answer Klebsiella pneumoniae, because this is the extra important point कि brick red sputum is produced in the Klebsiella pneumoniae. Okay, sometimes the sputum is thin and jelly like. ये jelly like भी पेपर में आता है कि jelly like है. थिक थिन से मैटर नहीं करता. एक आपने याद रखना है jelly like, एक आपने क्या याद रखना है? brick red sputum. और कौन सी this Klebsiella pneumoniae causes disease, that is UTIs. UTIs भी कर सकता है. We will discuss in genitourinary infections.
meningitis, septicemia, abscess, and wound infections. Hypervirulent strain of Klebsiella pneumoniae is HVKP. HVKP is a hypervirulent strain. सबसे खतरनाक strain है. Okay? HVKP produces very important pyogenic liver abscess. क्या करता है ये? Pyogenic liver abscess. ये आपने याद रखना है. This pyogenic liver abscess metastasizes from liver to eye, lungs and CNS. निमोनिया भी करेगा, निमोनिया भी आपने याद रखना है, and bacteremia. Identification of HYKP. How will you identify in the laboratory? There will be hypermucoid viscous string is formed when the loop is used to stretch the colony on the agar plate. आपने agar plate में सैंपल को इनोकुलेट किया, वहां पर कॉलोनीज बन गई, और आपने लूप एक ली, नाइक्रोम लूप जो हम लेते हैं, नाइक्रोम लूप से आपने कॉलोनीज को ऐसे रगड़ा, कॉलोनीज को ऐसे आगे लेके गए, तो एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. ये देख रहे हो, दिस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म. दिस इज माई कॉलोनी एंड दिस इज माई लूप, दिस इज माई लूप. ये लूप से आपने कॉलोनी को खींचा तो ऐसे स्ट्रिंग बनेगी. सो दिस इज माई स्ट्रिंग. बहुत बकवास टेस्ट है, बट हाँ फॉर योर एग्जाम्स यू शुड रिमेंबर. ओके. लैब डायग्नोसिस क्या है क्लेब्सियला निमोनिया की? कौन सा सैंपल होगा डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है. स्पूटम फॉर निमोनिया, एंडोट्रेकियल एस्पिरेट फॉर निमोनिया, यूरिन फॉर यूटीआईज एंड ब्लड फॉर सेप्टिसीमिया. ग्राम स्टेनिंग में आपको क्या मिलेंगे? इट्स क्या पढ़ रहे हैं हम? इट्स ग्राम नेगेटिव बेसिला निमोनिया ना. सो इट विल, ग्राम स्टेनिंग में क्या देखेगा? कैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव बेसिला. ये आपको दिख रहे हैं वो छोटे छोटे बड़े, इट्स नॉट सो प्रोमिनेंट. ये देख रहे हो बहुत छोटे छोटे, ये देख रहे हो, दिस इज माई छोटे 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 से बेसिला, नॉट कोकस. कोकस कंफ्यूज हो सकता है बंदा. ये देखो. ओके, दिस ऑल आर माई कल्चर. सोन मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार पे आपने इसको कल्चर करना है. देयर विल बी लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज. देख रहे हो पिंक 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 हुआ पे. सो दिस इज माय लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज, पिंक पिंक. कल्चर आइडेंटिफिकेशन, जो आपने कल्चर की फाइंडिंग ली है, you will ultimately go for the culture identification. You can also do the automated culture, that is Maltitov and Vitek. But conventional culture media, ये मैं टेबल लेके आया हूँ फ्रॉम माय जनरल वाली वीडियो, जनरल माइक्रोबायोलॉजी. मैंने अब आपको बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ाए तो आपको मैंने ये बताया है. सो आपने कभी भी क्लेब्सियला जब पढ़ना है ना, आपने इकोलाई के साथ कंपैरिजन में पढ़ना, बिकॉज बोथ आर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली, बोथ कॉजेज यूटीआईज. इसलिए ना क्वेश्चन आता है कि यूटीआईज में ये ऑर्गेनिज्म इकोलाई है कि क्लेब्सियला है. दैट यू कैन डिस्टिंग्विश विद द बायोकेमिकल टेस्ट ओनली. ओके, आपके पेपर में भी आएगा, आपके एमसीक्यूज में, आपके वो जब फाइनल वाइवा होता है तो क्लिनिकल कार्ड्स जो मिलते हैं उसमें एक केस होता है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द क्लेब्सियला एंड इकोलाई, बिकॉज बोथ द कॉजेज यूटीआईज, एंड हमें पता करना होता है कि कौन सा है, ये इकोलाई है कि क्लेब्सियला. तो अभी से ही आपने जो भी अगर आपको इकोलाई का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सिर्फ इकोलाई का लिखाना है, अगर आपको क्लेब्सियला आ रहा है तो आपने सिर्फ क्लेब्सियला का टेबल लिखाना है. बट इसका मैंने निमोनिक आपको करवाया था कि आपको पहले ये याद करना पड़ेगा पूरा सीक्वेंस, दैट इज इंडोल, सिट्रेट, यूरिया हाइड्रोलिसिस एंड मिथाइल रेड टेस्ट. तो इसका निमोनिक क्या था? ICU मॉम. So indole, citrate, urea hydrolysis, ये all I have discussed in my general microbiology video. I am just repeating it. Okay? तो आपने क्या रखना है कि जो E. coli का टेस्ट पॉजिटिव होगा वो क्लेब्सियला का नेगेटिव होगा, और जो E. coli का नेगेटिव होगा वो क्लेब्सियला का पॉजिटिव होगा. So they are opposite in the biochemical tests. Their nature of both the organisms is opposite in the biochemical tests. Okay? So E. coli is shows indole, it gives positive indole test, whereas Klebsiella gives negative. C का C आवाज आपने सुननी है, सिट्रेट, U मदर या मॉम. सो ऐसे. सो आपने याद रखना है कि पहला पॉजिटिव है E. coli का फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड लास्ट इज पॉजिटिव. अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्लेब्सियला के ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. ओके, और अगर ये पॉजिटिव है तो बाकी बचे हुए टेस्ट E. coli के नेगेटिव हो जाएंगे. अगर इसके नेगेटिव होंगे तो इसके पॉजिटिव हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर हैविंग डिफरेंट रिजल्ट, शोज डिफरेंट रिजल्ट. ओके, सो जो मेरा E. coli है, दैट indole gives a positive indole test, whereas Klebsiella gives negative. Citrate test, E. coli gives negative and Klebsiella gives positive, and urea वाला negative and Klebsiella positive, and methyl red, this E. coli gives positive test and Klebsiella is negative.
ट्रीटमेंट क्या है क्लेप्शिला की? मेजोरिटी ऑफ द क्लेप्शिला स्ट्रेन्स एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल्स. सो इट इज, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट, वैसे तो नॉन फर्मेंटर्स आर द मेन कॉज ऑफ वैप, दैट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, बट ये ज्यादातर सबको नॉर्मली निमोनिया नहीं कॉज करते. बट अब अगर आप हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में हो तो ये ज्यादा हाइपर वायलेंट हो जाते हैं. दैट्स वाई हॉस्पिटल नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए ज्यादा वो है कॉस्ट इवेजन. तो यू विल गिव अ वेरी सीरियस ट्रीटमेंट, वेरी क्या कहते हैं, हेवी ट्रीटमेंट, दैट इज मल्टी ड्रग, बिकॉज दीज दिस क्लेप्शिला इज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. कितने बैक्टीरिया, कितना ये क्लेप्शिला कितने एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट है? बिकॉज ऑफ आर गलती ओनली, बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज ऑफ पेशेंट्स की गलती ओनली. बिकॉज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर हो रही है तो उसमें पेशेंट्स की एंड डॉक्टर्स की ही गलती है सारी. So it is resistant to cephalosporins and quininols. Cephalosporins से resistant हो गए. सबसे ज्यादा antibiotics we are using in a hospital is cephalosporins. So किस से it is susceptible? Carbapenems, amikacin, beta lactamase inhibitors, that is sulbactam, tazobactam, are drug of choice for hospital acquired MDR. MDR is multi drug resistant bacteria. AST have to be done. एएसटी बगैर आपने, एक बार ही पेशेंट आ रहा है विद निमोनिया, आपने एक बार ही उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है, बट उसका सैंपल शुड बी सेंट टू द माइक्रोबियोलॉजी लैब एंड उसकी एएसटी परफॉर्म होनी चाहिए, तभी उसकी डायरेक्टेड एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड. ये मैं पता नहीं कितनी करोड़ों बारी बोल चुका हूँ अपने वीडियोस में, बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. एंड क्लेप्शिला, इकोलाई, Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia, these are the biggest problem because they are very, very resistant to so much of antibiotics we are using now because of our mistakes only. So this was all about today's video. कोई भी doubt हो you can comment or DM on Instagram. Link is description. Please share if you like my content and next video मिलते हैं Pseudomonas.